Ready? Very good evening once again to DNCC ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग लाइव भी देख पा रहे होंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। So today as a demo class I will discuss one small topic with you, and later on within 1 or 2 days, either Sunday or Monday, we will be regular for you all, and 3 to 4 hours classes will be there. So yesterday, today and tomorrow there will be the small videos available for you. So hopes you all will be fine, and let us continue. So today I will discuss with you about the one type of cell of the nerve system which is known as neuroglia. Today we will discuss about neuroglia. Yesterday we have seen the introduction of nerve system, in which I have taught you about the one important cell of the nerve system, about neurons, and today I am going to discuss with you neuroglia. The nerve system consists very importantly two type of cells. One is neuron and the second is neuroglia, and both contribute about 50%. Both contribute equally, 50% neurons and 50% neuroglia, and they made up the complete nerve system. So this is also very important structure of the nerve system, is a type of cell which is known as neuroglia. Okay, so what to say about the neuroglia, how to define what is the neuroglia. Neuroglia is very simple. It is a type of nervous system cell which is mainly structural. अब इस लाइन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कल जब हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, देन आई हैव टोल्ड यू न्यूरॉन is the basic structural as well as the functional unit of nerve system, and here I am saying you that neuroglia is mainly the structural unit. It is a structural unit of nerve system, mean to say the important functions of the nerve system is carried out by neurons, but the neuroglia is mainly responsible for supporting to the neurons. It is basically a supporting unit of the nerve system. Okay, so it is equally important, and structurally it contributes about 50% of the system. So it contribute about 50% of the total nervous system. So mean to say very simply that 50% neurons are present in the nerve system, and another 50% the neuroglia cells are present. But it is only importantly or mainly it is the structural unit, while the neuron is structural as well as is the functional unit. This is a simple major difference between the neuron and neuroglia. Okay, neuron is structural and functional unit, while the neuroglia is only the structural unit. Okay, then these old neuroglia cells is made up of a teeny small cells which is known as glial cells. Glial cells. These neuroglia cells are made up of, again they are made up of with small type of cells which is known as glial cells. This is second important point here. Sometimes in your competition exams can be asked the neuroglia cells is made up from.
So these all neuroglia cells are made up from another small cells which is known as glial cells. This is the second important point. Third important difference or point of the neuroglia is, yesterday I have told you that neurons cannot regenerate. They can't duplicate themselves. They don't have cell divisions. Neurons cannot divide. Okay? But neuroglia is not so. Neuroglia can have divisions. They can duplicate themselves. Okay? They have the cell regeneration. So, yesterday itself I have told you people that neuron cannot divide, they can't regenerate because they are lacking the important organelles which is known as centrioles. Centrioles is not present in the cell body of neurons, and that is why they can't regenerate. But neuroglia contain the centrioles, so that these centrioles can make a connection with the nucleus. They can give the tension over there and can divide to these particular cells. So neuroglia undergoes cell division. It can undergo cell division. This is again very important and major difference between the neuron and neuroglia. Neuron cannot undergo the cell division, while the neuroglia can undergo the cell division. So once important point comes here, whatever the type of gliomas means the cancer cell of the nerve system are all made up of these cells, neuroglia cells. This is very, very important. How? Because I have told you that neurons, they cannot undergo the cell division. They don't have the divisions. So that if they will not divide, then they cannot multiply. Can't multiply. They cannot proliferate. So they also cannot form any type of cyst, any type of cancer. But these neuroglia can undergo the cell division, they can multiply themselves, they can proliferate and can form a type of cyst, which is later on known as the cancer. So all the type of cancers related to the nerve system are always made up of one important cell which is known as neuroglia cells. And these type of cyst or the type of cancers is always known as gliomas. Okay, so this is the major difference. These can undergo the cell division and can form the cancer cells. Okay. Now the next comes here. These neuroglia cells are mainly 6 types. These are mainly 6 types. ये टोटल 6 प्रकार की होती है. These are 6 types. Just I have told you about the neuroglia cells. आपको मैंने कहा कि ये नर्व सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. ग्लियल सेल से मिलकर बनती हैं. ये सेल डिवीजन कर सकती हैं. अब ये जो न्यूरोग्लिया है ये मेनली 6 प्रकार की होती है. इन 6 में से आउट ऑफ दीज 6 देयर आर द 4 neuroglia cells are present in CNS, while the 2 cells are present in PNS. Again, the important point here, the 6 type of neuroglia cells. Among these 6, there are the 4 cells which is only present in the CNS. CNS mean here central nervous system, while these 2 cells are present in PNS, peripheral nerve system. So now we will have that discussion over these. Which are the 4 cells which is present in CNS and which are these 2 cells which is present in PNS. Okay, so first we will see these 4 cells which is present in only central nervous system, and then we will talk about these 2 type of cells which is present in peripheral nervous system. You will be knowing well, central nervous system consists of 2 important organs, brain and spinal cord. Other than these 2 organs, brain and spinal cord, all organs comes under the peripheral nerve system. Okay, so let us have the discussion over these 4 cells which is present in CNS.
Okay, we will go to the next page. So now we will discuss the four cells for neuroglia cells which is present in C and S. The four neuroglia cells which is present in central nervous system. Okay, first cell which is present in central nervous system is known as astrocytes. The important term here, astrocytes. So सबसे पहले सिंपल एक लाइन हम ये कहेंगे, अगर हमें कोई एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पूछता है कि व्हाट इज द एस्ट्रोसाइट या एस्ट्रोसाइट्स को हम कैसे डिफाइन करें, क्या इंट्रोडक्शन दे इसके बारे में, तो बहुत सिंपली हम ये कह सकते हैं एस्ट्रोसाइट इज द टाइप ऑफ सेल which is the type of neuroglia cells which is present in central nervous system. Okay, so it is the पहली बात तो astrocytes के बारे में यही होगी, it is the type of neuroglia cells which is present in central nervous system. Number 2, 3 से 4 पॉइंट्स की हम बात करेंगे हर सेल के बारे में। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है इनकी एक विशेष प्रकार की शेप होती है, इनको देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये वाली इस शेप की अगर सेल है तो ये एस्ट्रोसाइट्स है। दे हैव द वन स्पेसिफिक शेप व्हिच इज द स्टार शेप्ड। दीज एस्ट्रोसाइट्स आर स्टार शेप्ड। ये स्टार शेप की होती है, इनकी जो शेप होती है वो मेनली स्टार शेप होती है। ओके, स्टार शेप्ड। सिंपली just like this. This is a star, very simple. So these astrocytes are always look like this star shapes. पहली बात, दो चीजें हो गई, astrocytes, neuroglia cells present in the CNS. दूसरा पॉइंट, इनकी शेप कैसी है, स्टार शेप की। नंबर 3, थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है, यहाँ पे हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब मैंने आपको कहा था दो मेन ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी एग्जैक्टली ये कहां पर पाई जाती है। ओके, सो दीज आर मेनली प्रेजेंट इन द ब्लड, नियर टू द ब्लड वेसल्स। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर present at blood vessels. They are present at blood vessels of the central nervous system. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड वेसल्स है उसके साथ साथ ये पाई जाती हैं, and these are also present along with the neurons. with neurons. ये न्यूरॉन्स के साथ साथ भी पाई जाती है। These are also present along with neurons. ओके, सो दो बातें हो गई, ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट हो गई कि ये कहां पाई जाती है, ये ब्लड वेसल्स के पास पाई जाती है और न्यूरॉन्स के साथ साथ में ये पाई जाती है। अब ये ब्लड वेसल्स में जहां पाई जाती है वहां ये क्या करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। These helps in the formation of blood brain barrier. ओके, सो यहां पे मैं इनके फंक्शन की बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। these cells helps in formation of blood brain barrier. This is, ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ में पाई जाती हैं और इनकी एक फुटलिंग प्रोसेस होती है। ये जो स्टार शेप की आपको दिखाई दे रही है, होता क्या है, फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, ओके, और इस ब्लड वेसल्स के जस्ट पास में यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से ये आपकी एक एस्ट्रोसाइट्स है एग्जांपल। अब ये एस्ट्रोसाइट्स की जो ये ब्रांचेस है, इस तरह वाली ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ जा रही है, ये जो अंदर की तरफ ब्रांच हो जाती है, इनको हम बोलते हैं फुटलिंग प्रोसेस। फुटलिंग प्रोसेस। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये फुटलिंग प्रोसेस होती है और ये इनके जो फुट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे एक दूसरे के साथ में एक जाल सा बनाते हैं और उस जाल को हम कहते हैं
ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसमें से ब्लड जो है वो छन छन के एकदम क्लियर होके छन कर आगे की तरफ जाता है, ब्रेन के टिश्यूज तक पहुंचता है। हालांकि ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्मेशन करने में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वाइडली, बट या दीज आर एस्ट्रोसाइट्स आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये तो इनका पहला फंक्शन हो गया। नंबर 2, दूसरा, दीज सपोर्ट, ये नीचे वाली लाइन देखो, दे आर प्रेजेंट अलोंग विद द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के साथ में भी पाई जाती है। वहां पर ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के साथ साथ में चलती है और वहां पे ये उनको सपोर्ट देने का काम करती है। फॉर द एग्जांपल के तौर पे ये एक न्यूरॉन है, ओके, दिस इज ए न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन्स के साथ साथ में ये मान लीजिए ये आपके न्यूरॉन्स है, ओके, जस्ट लीव दिस। सो इस न्यूरॉन्स के साथ साथ में ये भी पाई जाती है और वहां पे ये क्या करती है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट, जैसे मान लीजिए इसके साथ साथ नीचे की तरफ ये है, ये इस तरह से पाई जाती है और ये जस्ट इनको पूरी तरह से सपोर्ट, ये इनको सपोर्ट देने का काम करती है। एक्चुअली इनका जो नेचर होता है वो ग्लू जैसा होता है, दीज आर ग्लू लाइक सेल्स, जो गोंद नहीं होता ग्लू, वो गोंद के जैसी या ग्लू के जैसी होती है और ये न्यूरॉन्स के साथ साथ में ये एक गोंद के जैसा, ग्लू के जैसा सब्सटेंस ये पाया जाता है और उससे ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करती है। दिस इज अबाउट द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू द एस्ट्रोसाइट्स, की जो एस्ट्रोसाइट्स है वो कैसी होती हैं। 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में बता दिए, इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में सबसे पहले हमने कहा कि ये एक प्रकार की न्यूरोग्लिया सेल्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। दूसरा हमने कहा इनकी जो शेप है वो स्टार शेप होती है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, वहां पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये न्यूरॉन्स के साथ साथ में पाई जाती है, वहां पे ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करती हैं, ओके। और जो ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ इनकी प्रोसेस जाती है उनको हम फुटलिंग प्रोसेस कहते हैं, जहां से ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। ये ग्लू के जैसा होता है जिसकी वजह से ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करती है। दिस इज अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेल which is the type of neuroglia cells known as astrocytes। अब बात करते हैं सेकेंड सेल की। सेकेंड सेल which is present in CNS। शुरू में हमने कहा था कि टोटल 4 ऐसी सेल्स होती हैं जो CNS में पाई जाती है। न्यूरोग्लिया की 4 टाइप्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट सेकेंड सेल, सेकेंड कौन सी है, नंबर 2 के ऊपर आती है ओलिगोडेंड्राइट्स। This is the second type of cell, ओलिगोडेंड्राइट्स। सो पहली बात ओलिगोडेंड्राइट्स के बारे में सिंपल यही होगी that ओलिगोडेंड्राइट्स is the type of neuroglia cells which is present in CNS, नंबर 1। नंबर 2, CNS में भी ये कहां पे, CNS मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एग्जैक्टली CNS में ये कौन सी जगह के ऊपर पाई जाती है, ये कंप्लीट नर्व सिस्टम में पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट, नंबर 2 सेकंड पॉइंट इसके बारे में, दीज आर प्रेजेंट ओवर द न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स के ऊपर की तरफ ये पाई जाती है और वहां पे ये करती क्या है, या न्यूरॉन्स के ऊपर क्यों पाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, दे फॉर्म, ये बनाती हैं माइलिन शीट, दे फॉर्म माइलिन शीट। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। सो 2 points here about the oligodendrites. These are present over the neurons and where it form the myelin sheath. Many type of questions are asked in the competition exam related to this particular line. They will ask you the functions of oligodendrites and the options will be form the myelin sheath, form the Schwann cells, form the non-myelinated, like that. So these oligodendrites are helps in the formation of myelin sheath. Where? This is very important. Where? In the CNS.
central nerve system. All the myelin sheath which is present on the neurons of central nervous system are made up of oligodendrites. Next point. About the astrocytes, I have told you the shape of astrocytes is star. So oligodendrites की जो shape है वो कैसी होती है? Oval shape. These are in oval shaped. ये नॉर्मली ओवल शेप की होती है, सिंपली गोलाकार आकृति की सी होती है. बेसिकली दीज आर लाइक दिस, वेरी सिंपली ये इस तरह से होती है, एक ओवल शेप की होती है. ओके, ये इनकी शेप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्ट्रोसाइट्स के लिए हमने कहा कि वो स्टार शेप होती है, तो ओलिगोडेंड्राइट्स कैसी होती हैं? ओवल शेप की होती हैं. एंड फंक्शंस मैंने आपको इसकी लोकेशन और फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया. इनकी जो लोकेशन है वो न्यूरॉन्स के ऊपर होती है और फंक्शन इनका है माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना. कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज द ओलिगोडेंड्राइट्स. आगे चलते हैं नंबर 3 के ऊपर. थर्ड पॉइंट, तीसरी सेल, द न्यूरोग्लिया सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन सीएनएस इज नोन एज माइक्रोग्लिया. Microglia. Again very important cell. So first line इसके बारे में अगर इसको हमें डिफाइन करना हो, what is the microglia? Then we will say microglia is the type of neuroglial cells which is present in CNS. ये न्यूरोग्लिया की एक ऐसी सेल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, उसको हम कौन सी बोलते हैं? माइक्रोग्लिया. जैसे हमने एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स की शेप बताई, उसी तरह से सबसे पहले माइक्रोग्लिया की बात करते हैं कि जो माइक्रोग्लिया है उनकी शेप कैसी होती है. दीज आर स्पाइडर शेप्ड. These are spider shaped. First thing, the microglia cells is look like spider. स्पाइडर आप जानते होंगे, स्पाइडर मीन सिंपली मकड़ी हम बोलते हैं. जो मकड़ी होती है, ये जो सेल्स होती हैं ये जस्ट मकड़ी के जैसी होती हैं, स्पाइडर शेप्स की होती हैं. वेरी सिंपली देयर इज नो एग्जैक्ट शेप ऑफ स्पाइडर. ओके, दे हैव द मेनी टाइप ऑफ ब्रांचेस. इस तरह की एक शेप सी बन जाती है और ऐसी शेप्स में ये पाई जाती है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं. सो दिस इज द सिंपली थियोरेटिकल पॉइंट हियर इज, अगर कहीं भी पूछा जाता है कि माइक्रोग्लिया सेल्स कैसी शेप की होती है तो दे विल लुक लाइक द स्पाइडर सेल्स. नंबर 1. नंबर 2, अब बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया सेल्स कहां पर एग्जैक्टली पाई जाती है. दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स. These are present in blood vessels. These microglia cells are also present in the blood vessels of central nervous system, means brain and spinal cord. Brain और spinal cord की जो blood vessels हैं उनके अंदर की तरफ ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं ये पाई जाती हैं. और यहाँ पर ये करती क्या है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों पाई जाती हैं? यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं फेगोसाइट. ओके, इनका फंक्शन क्या है? These are the phagocyte cells. These are the phagocyte cells. ये phagocyte होती है नेचर में. Again very important question here. Phagocytes means आपको पता होगा, phagocyte is the type of defense cells. ये एक विशेष प्रकार की डिफेंस सेल्स होती है which engulf the debris, the bacteria, the microorganism, the dead tissue. इन सबको ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स के अंदर. फॉर द एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल्स है एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे मान लीजिए ये एक आपकी जो है माइक्रोग्लिया सेल्स है. जो ब्लड इस ब्लड वेसल्स में से आता है, इस तरह से ये ब्लड आता है, ये ब्लड इसके अंदर की तरफ ये माइक्रोग्लिया सेल्स घूमती रहती हैं और ये क्या करती हैं? इस ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई डेब्रिस है, कोई डेड टिश्यू है, उन सबको ये जो माइक्रोग्लिया है ये इनगल्फ कर जाती है और ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है. एंड देन दिस फिल्टर्ड ब्लड नाउ गोज अप टू द सेल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Okay, so this is very important function of the microglia cells which is phagocyte. And lastly, एक important point और microglia के बारे में. These microglia cells are derived from
ये एक विशेष प्रकार की सेल से ली जाती है जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एक विशेष प्रकार की डिफेंस सेल्स होती है अंडर द कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की एक सेल्स होती है जिसको हम मोनोसाइट्स बोलते हैं। ओके, ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं दे आर आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम दीज मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट से ही अलग होती हैं। कब होती है ये अलग? जस्ट बिफोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिफोर about, not exact but about 1 week, just before about 1 week of birth। किसी भी बच्चे का जन्म होने से जस्ट 1 वीक पहले एक्चुअली ये जो मोनोसाइट्स जो है इनसे टूटकर ये माइक्रोग्लिया सेल्स अलग हो जाती हैं, और जैसे ये अलग होती हैं उसके बाद में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती हैं और परमानेंटली, और वहां पर ये फेगोसाइट का काम करती है। सो कभी-कभी इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कई बार पूछा जाता है आपकी गाइड्स में। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिल जाएंगे। वहां पे लिखा हुआ आएगा माइक्रोग्लिया सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम, और ऑप्शन में होगा मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ओके, और बहुत सारी जो सेल्स हैं उनके ऑप्शंस में नाम होंगे। तो microglia cells is derived from monocyte. This is about the third important cell of the neuroglia which is present in CNS. अब बात करते हैं चौथी important cell की, fourth last neuroglia cells which is present in CNS. Okay, fourth, number 4, fourth के ऊपर ependymal cells। fourth कौन सी है? ependymal cells। फोर्थ है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, दिस इज द फोर्थ। सो सबसे पहला सिंपल सा इंट्रोडक्शन इन सेल के बारे में यही हो गया कि एपेंडाइमल सेल्स क्या है। अगर कहीं कोई भी ये पूछता है कि भाई व्हाट इज द एपेंडाइमल सेल्स, या जस्ट डिफाइन द एपेंडाइमल सेल्स, या एपेंडाइमल सेल्स के बारे में बताओ कि ये क्या होती हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स which is present in central nervous system। okay, the type of neuroglia cells present in central nervous system, number 1। number 2, सेल। जैसे हमने तीनों सेल्स की बात करी, मैंने आपको कहा एस्ट्रोसाइट जो वो स्टार सेल की है, ओलिगोडेंड्राइट जो वो ओवल सेल की है, माइक्रोग्लिया जो है बेसिकली वो जस्ट लाइक स्पाइडर शेप की है, और ये एपेंडाइमल सेल्स ये कैसी है दिखने में, इनकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती, ये एक लाइनर कैविटी की तरह नॉर्मली दिखाई देती है। सो दीज आर एन लाइनर, दीज आर जस्ट लुक लाइक एन लाइनर कैविटी। ये एक लाइन में अरेंज्ड एक कैविटी की तरह दिखाई देती है। जस्ट फॉर द एग्जांपल कि इस तरह से मान लीजिए इस तरह से एक सेल्स होती है, ये नॉर्मली इस तरह की सेल्स होती हैं। ओके, लाइक दिस, ये इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे एक लाइन सी बनी होती है जो इस तरह आपको दिख रही है। ऐसे एक लाइनर, एक लाइन में ये अरेंज होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं दीज आर लाइनर शेप्ड, या फिर लाइक दे आर अरेंज्ड इन ए लाइनर कैविटी। ओके, ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, हमने कहा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली कहां पर पाई जाती है। मींस टू से कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनको हम कहते हैं, उन दोनों में एग्जैक्टली ये कहां पर है, इनके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये मेनली और एग्जैक्टली दे आर प्रेजेंट, दे आर और एपेंडाइमल सेल्स आर लोकेटेड इन वेंट्रिकल्स, located in ventricles। ventricles हमारी ब्रेन में 4 इरेगुलर शेप कैविटी होती है जिनमें CSF भरा रहता है। उन चारों इरेगुलर शेप कैविटीज को हम एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। वहीं पर ये एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती है, बट नॉट इन दिस कैविटी एग्जैक्टली।
These are present located in the ventricles. Ventricles में कहाँ पे? In the ventricles, in choroid plexus. In choroid plexus, they are located in choroid plexus. हमारी बेसिकली जो वेंट्रिकल्स है वो कोरोइड प्लेक्सस से मिलकर बने होते हैं और इन कोरोइड प्लेक्सस से मिलकर ही वेंट्रिकल्स बनते हैं। तो इन कोरोइड प्लेक्सस को जो बनाने वाली सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं? एपेंडाइमल सेल्स। ओके, सो ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। एपेंडाइमल सेल्स आर लोकेटेड इन द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स। और अब ये यहां पर काम क्या करती हैं? ये कोरोइड प्लेक्सस में क्यों पाई जाती है? वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस में इनका मेन काम क्या है? तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे सीक्रेट्स, ओके, दीज सीक्रेट्स CSF। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एपेंडाइमल सेल्स वहां पे एक विशेष प्रकार के लिक्विड का स्राव करती हैं, उसको सीक्रेट करती हैं, और उस विशेष प्रकार के लिक्विड को हम कहते हैं CSF, मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस इज, आपको सबको पता ही है CSF के बारे में, हम आगे बहुत डिटेल में भी इसके बारे में पूरा बात करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड ऑल। बट ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि ये CSF जो है वो कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है? एपेंडाइमल सेल्स के द्वारा। कहां पर? वेंट्रिकल्स में। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ fourth neuroglia cells which is present in CNS is known as ependymal cells। ये चार इंपॉर्टेंट सेल्स होगी जो CNS में पाई जाती है। टोटल मैंने आपको कहा था कि 6 सेल होती हैं न्यूरोग्लिया सेल्स, जिसमें से 4 ऐसी हैं जो CNS में पाई जाती है और 2 ऐसी हैं जो PNS में पाई जाती हैं। तो इन 4 के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगली 2 सेल्स की जो PNS में पाई जाती हैं। ओके, सो देन नाउ न्यूरोग्लिया cells which is present in PNS। न्यूरोग्लिया की वो 2 सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहली इसमें फर्स्ट जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट सेल्स। ओके, so the first cell of the neuroglia cells which is present in PNS is known as the satellite cell। इन दोनों सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में मोस्टली नहीं पूछे जाते। जस्ट सिंपल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इनके बारे में दे देता हूं। जो सैटेलाइट सेल है ये एग्जैक्टली एस्ट्रोसाइट्स की तरह ही काम करती हैं, लेकिन कहां पर? PNS में, न कि CNS में, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स जो है वो CNS की सेल है और सैटेलाइट जो सेल्स है वो किसकी है? PNS की। ओके, सो दिस इज, सबसे पहली बात तो ये होगी, अगर सैटेलाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना हो तो हम ये कहेंगे इट इज द टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन PNS। और वहां पे ये क्या करती हैं, कहां पर पाई जाती हैं? सेम जैसे हमने एस्ट्रोसाइट्स के लिए कहा था, दे आर प्रेजेंट अलोंग विद द न्यूरॉन्स। उसी तरह से दीज आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग with न्यूरॉन्स। और वहां पे ये क्या करती हैं? इन न्यूरॉन्स के साथ में क्यों पाई जाती हैं? वहां पे न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करती हैं। ओके, सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। वहां पर ये, जैसे हमने एस्ट्रोसाइट्स के लिए कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो सपोर्ट देती है, इसी तरह से ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उनको सपोर्ट देने का काम करती है। ये भी ग्लूज लाइक सेल्स होती हैं जो सपोर्ट देती हैं। दिस इज अबाउट द सैटेलाइट सेल्स। और दूसरी जो सेल है, सेकंड सेल जो न्यूरोग्लिया सेल्स जो PNS में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं स्वान सेल्स। This is the second important cell which is present in PNS, peripheral nerve system, जो न्यूरोग्लिया की एक टाइप है। ये जो स्वान सेल्स हैं ये नॉर्मली जो ओलिगोडेंड्राइट्स हैं उनकी तरह होती है। अभी हमने CNS में सेकंड जो सेल पढ़ी थी उसको हमने कहा था ओलिगोडेंड्राइट्स, जो ओवल शेप की हैं, और उसके लिए हमने कहा था कि वो वहां करती क्या है? माइलिन शीट का फॉर्मेशन।
ओके, यहाँ पे ये जो स्वान सेल्स हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था जब हम बात कर रहे थे न्यूरॉन्स की, तब मैंने आपको कहा था कि न्यूरॉन्स के ऊपर एक सेल इंटरमीडिएट सेल्स होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और तब मैंने आपको ये कहा था कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल। लेकिन कौन सी वाली न्यूरॉन्स की माइलिन शीट का? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है, वहां पे जो माइलिन शीट का निर्माण होता है वो ऑलिगोडेंड्राइट्स के द्वारा होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, वहां पे उन माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी सेल करती है? स्वान सेल्स। सो दिस इज, आगे पहली बार अगर लोकेशन की हम बात करें तो वही कि दीज आर प्रेजेंट over the neurons intermittently in the myelinated neurons only। और वहां पे ये काम क्या करती हैं? इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट कहां पर? इन द PNS। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो this is about the 6 type of cells and the next second cell of नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की दो इंपॉर्टेंट सेल, पहली न्यूरॉन्स, दूसरी न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के बारे में अभी हमने बात करी कि जो न्यूरोग्लिया है वो कौन सी सेल्स होती है, कितनी होती है, क्या होती है। जस्ट वी विल हैव द वन ब्रीफ रिव्यू अबाउट व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। सो आई विल गो टू द प्रीवियस पेजेस एंड फ्रॉम वेयर वी कैन रिवाइज। This is 4th page. I will come to the first page now. 3rd page, and that's it. 3rd page. This is 2nd page, and this is the first page. First page. Okay, this is the first page. We have discussed about this first page. Importantly, I have told you about the neuroglia. यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की, लगभग 50% कंट्रीब्यूट करती है कंप्लीट नर्व सिस्टम का। ये ग्लियल सेल से मिलकर बनी होती हैं और इनमें सेल डिवीजन पाया जाता है। ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती हैं और ये टोटली 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 4 ऐसी हैं जो CNS में होती हैं और 2 ऐसी है जो PNS में होती हैं। एंड देन वी केम ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन CNS. It has been cleared, I hope so. We'll come to the next page. This is that ये 4 neuroglia cells which is present in CNS। तो उनमें से पहली जो सेल्स थी उसके बारे में हमने बात करी एस्ट्रोसाइट्स की। इसके लिए मैंने आपको कहा कि ये स्टार शेप होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसके अंदर पाई जाती हैं और न्यूरॉन्स के साथ साथ में भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं और न्यूरॉन्स को ये सपोर्ट देने का काम करती हैं। Then we came to the second cell, दूसरी टाइप की सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, उसको हम ओलिगोडेंड्राइट्स कह रहे थे। और ओलिगोडेंड्राइट्स के लिए मैंने आपको कहा था कि इनकी जो शेप है वो ओवल शेप की होती है। ये न्यूरॉन्स के ऊपर की तरफ पाई जाती हैं इंटरमिटेंटली और वहां पे ये इंपॉर्टेंटली काम क्या करती हैं? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं। Then we came to the third cell, तीसरी सेल के ऊपर हम आए थे। तीसरी सेल के लिए हमने कहा था माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया की जो शेप है वो स्पाइडर के जैसी है। ओके, ये कहां पाई जाती है? ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ। कौन सी ब्लड वेसल्स? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड वेसल्स। और वहां पर ये करती क्या है? फेगोसाइट का काम करती है। ओके, और ये एक्चुअली कहां से डेराइव हुई है? मोनोसाइट से। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट माइक्रोग्लिया। एंड लास्ट सेल में हमने बात करी थी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स के लिए मैंने आपको कहा था कि ये नॉर्मली लाइनर कैविटी की तरह दिखाई देती हैं। ये कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स में वहां पर ये पाई जाती है और वहां पर ये करती क्या है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन वहां पर करती है। ओके, ये 4 वो सेल्स थी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। देन वी केम टू द 2 न्यूरोग्लिया की ऐसी सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। उसके लिए पहली सेल्स के लिए मैंने आपको कहा सैटेलाइट सेल्स। ये नॉर्मली एस्ट्रोसाइट्स की तरह होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं उनके साथ साथ में ये चलती हैं और वहां पर ये सपोर्ट देने का काम करती है टू द न्यूरॉन्स।
एंड दूसरी जो सेल्स है उसको हमने कहा था स्वान सेल्स। ये स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं वहां पर ये माइलिन शीट बनाने का काम करती हैं। दिस वाज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स नोन एज द न्यूरोग्लिया सेल्स। दैट्स इट अबाउट टुडेस क्लास। We will be see you again very soon in the next class. Thank you so much. Thank you. नहीं यहाँ से